Hello everyone, welcome back to our Learn Pro classes class 10th. Here I am, your master teacher of social science, and my name is Ananya ma'am. Today I am here with the part 4 of the chapter that we were doing, Lifelines of National Economy, and this is the last part of this chapter. Congratulations. And now we are heading on to the part 4 of the chapter, so just stay tuned and continue. Now, अब हमने last video में, last lecture में we did it with the modes of transportation हमने करे थे, in which हमने railways का and roadways, waterways, airways, pipelines, इन सब के features किए. Okay, so now we are heading on to the second part. हम chapter का बोल सकते हैं. अभी तक हम transportation पे थे. Transportation and communication are the lifelines. हम chapter करें lifelines of national economy. There are two lifelines of our economy जिससे हमारी economy flourish करती है. That are transportation and communication. Transportation part we did it in the part 3, part 1, part 2, part 3 were all of transportation, and now this is the only part 4 of communication sector. आपको पता है बच्चा, communication plays a very important role in the development of our country. हम ये कह सकते हैं that heart and soul है हमारी Indian economy का. How? Now what is communication? I am communicating with you. मैं communication कर रही हूँ ना. You are able to listen me, and what is the mode in which by which we are communicating? Mobile phones, tablets and all, everything. Clear? So मैं एक general communication कर रही हूँ. Very much persons are attached with me. तो personal communication जैसे mobile and letters, ये there are different types of communication. Personal communication होता है और mass communication होता है. Clear ना? पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन. अच्छा बच्चा, इसमें क्या डिफरेंस है पर्सनल कम्युनिकेशन में और मास कम्युनिकेशन में? पर्सनल मीन्स इफ वी आर टॉकिंग टू ओनली वन पर्सन, ओनली टू पर्सन्स आर इंक्लूडेड इन इट and they are talking to each other, they are passing on their information to each other. Mass communication क्या है? Mr. Modi is addressing the public. ठीक है, our prime minister Mr. मोदी इज एड्रेसिंग द पब्लिक. तो वो एक पर्सन से तो ना पब्लिक जनरल बात कर रहे हैं. मास में एक गुड अमाउंट ऑफ पीपल आर कनेक्टेड टू हिम, तो मास कम्युनिकेशन है. दैट इज जैसे टीवी है, रेडियो है एंड प्रेस. टेलीविजन वन एंटरटेनमेंट सोर्स इज कमिंग. हम एंटरटेनमेंट सोर्स है टीवी, तो उसमें समथिंग लाइक एनी रियलिटी शो और सम लाइक एनीथिंग इज वॉचिंग आउट, हमें डिस्प्ले करा जा रहा है. तो ये सब कुछ चीजें क्या हैं? कोई एक पर्सन तो नहीं कि नहीं सिर्फ यही पर्सन देख सकता है उस शो को. जनरल है. दैट इज मास कम्युनिकेशन. इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. पोस्टल सर्विसेज, लेटर्स, ईमेल, लेटर्स वगैरह, ये सब कुछ क्या है? इंडियन पोस्टल सर्विसेज. दैट इज पता है इंडियन पोस्टल सर्विसेज, लेटर्स वगैरह पे इट वाज एन एंशिएंट, पहले चलता था. नाउ इन द रीसेंट टाइम इट इज वेरी ऑन द लो बेसिस, बट स्टिल बच्चा कुरियर वगैरह हम करते हैं, स्पीड पोस्ट एंड ऑल. तो ये क्या है? इंडियन पोस्टल सर्विसेज. एंड द नेटवर्क ऑफ पोस्टल नेटवर्क ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया. इवन इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑल ओवर द एशिया इज मच लार्जेस्ट. Mass communication, see, number of things are there. All India Radio, national television channel, newspaper के through हम communication कर सकते हैं. And India is largest producer of features, films, film industry, Bollywood industry, and what all things we are on with the communication sector. हम communication sector में बहुत आगे हैं क्योंकि हम पब्लिक के साथ एक बहुत अच्छे वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको पहुंचा रहे हैं. There are two ways by which we are doing, by which we are connecting to them, that are personal communication and mass communication. Now, हम सिर्फ अपनी ही कंट्री के सिटीजन्स एंड पब्लिक से साथ कनेक्टेड नहीं है, हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं. And all countries are doing international trade, the exchange of goods and services among people, states and countries is a refined as trade. क्या बोला गया है? What is trade actually? The exchange of goods and services. Export import trade है. If deficiency of some resources are there in India, I am saying that I will export it. हम उन्हें
इंपोर्ट करा लेंगे। एंड सम ऑफ द सर्विसेज आर वेरी मच एफिशिएंट है, हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम उन्हें एक्सपोर्ट कर देंगे इफ दे आर हैविंग डेफिशिएंसीज एंड इफ दे वांट। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। व्हेन सच ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन अमेरिका, ठीक है, इंडिया और अमेरिका में ट्रेड हो रहा है, जो उनके पास एक्स्ट्रा है एंड हमें जरूरत है, दे आर सेंडिंग इंपोर्ट कर, हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, कोई रिसोर्स है, वी आर एक्सपोर्टिंग टू देम इफ दे आर इन नीड। तो ये सब कुछ चीजें क्या है, व्हेन सच ट्रेड, अगर दो कंट्रीज में ट्रेड होता है देन इट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। Resources are space bound. International trade is necessary. Resources and development में करा है हमने that resources ना space bound है. Space bound that some of the resources are with us and some of the resources are with America. ये तो ये resources, अब हमें वो वाला रिसोर्स चाहिए जो अमेरिका के पास है, हमें ट्रेड कराना पड़ेगा, हमें चाहिए, देन हम उन्हें बोलेंगे कि हमें भेजो और वो इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। तो ये सब कुछ चीजें क्या, रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, वी नीड, सम ऑफ द कंट्रीज आर हैविंग एफिशिएंसी इन सम रिसोर्सेज, सम ऑफ द कंट्रीज आर हैविंग डेफिशिएंसी इन अदर रिसोर्सेज। तो ये क्या है, हमें एक ट्रेड करना पड़ता है। अब आपको पता है देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेड। अब वो टू टाइप क्या है, एक होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक होता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। बच्चा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, when exports are more than the imports। अगर इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, दे ज्यादा रहा है और ले कम रहा है, ठीक है ना, इफ एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट्स कम है, दैट इज फेवरेबल। एंड अगर इंडिया के एक्सपोर्ट कम हो गए और इंपोर्ट ज्यादा हो गया, कि मंगवा कम रहा है एंड इवन इंडिया इज गिविंग लेस, तो वो क्या होता है, अनफेवरेबल। फेवर नहीं है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं है। अनफेवरेबल कौन सा है, व्हेन एक्सपोर्ट इज लेस, इंपोर्ट ज्यादा है, द क्रोकोडाइल माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स इंपोर्ट, इट मींस इंपोर्ट ज्यादा है, दैट इज अनफेवरेबल। जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, दैट इज फेवरेबल। वही अच्छा है कि हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, इट मींस वी आर हैविंग इनफ रिसोर्सेज, तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज अ गुड अमाउंट, दैट इज गुड थिंग। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। अगर हम बहुत इक्वल जा रहे हैं, ना तो हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं ना हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, तो वी आर गोइंग ऑन द बैलेंस, कोई इशू नहीं है, वी आर ऑन द इक्वल बेसिस, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर ना? चलिए नाउ अच्छा, ट्रेड तो हमने कर लिया, एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन और द अदर कंट्री। अब टूरिज्म सेक्टर किस किस ने पढ़ा, सबको पता है टूरिज्म, हम जाते हैं, टूरिस्ट वगैरह जो है, दे आर कमिंग टू इंडिया टू सी द डाइवर्सिटी एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, है ना, आते हैं ना। तो ये सब क्या है, टूरिज्म है। टूरिज्म एक ट्रेड ही तो है, दे ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज, दे ब्रिंग फॉरेन करेंसी, वो अपनी करेंसी लाएंगे एंड यहाँ पर आके इफ दे हैव टू लिव ओवर हियर, सो दे हैव टू गेट द एक्सचेंज ऑफ इट, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। A sector having potential to generate more employment, पता है बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है टूरिज्म से। गाइड जो उन्हें इफ दे विल कम ओवर हियर टू सी अराउंड आवर इंडिया, तो उन्हें गाइड चाहिए जो उन्हें बताएगा कि व्हाट इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मॉन्यूमेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एवरीथिंग। तो उससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। फॉरेन टूरिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट ₹64,889 करोड़ टू फॉरेन 2010। हमें इतनी एक गुड क्वांटिटी ऑफ अमाउंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ द फॉरेन ट्रेड। बेनिफिट्स क्या है बच्चा फॉरेन ट्रेड्स के, नेशनल इंटीग्रेशन की, वहां का कल्चर यहाँ आ रहा है तो हमें पता लग रहा है दैट व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन, एक हम कनेक्ट हो रहे, नेशनल इंटीग्रेशन है। प्रोवाइड सपोर्ट्स टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, अब वो यहाँ पर आएंगे, दे विल बाय। आपने देखा होगा जब हम किसी भी प्लेस पर जाते हैं तो कुछ ना हम कह सकते हैं कि फेमस जो चीज होती है, बहुत पॉपुलर थिंग्स होती है, हम कहते हैं ना कि दैट जम्मू एंड कश्मीर एप्पल्स आर सो फेमस, शिमला के एप्पल्स बहुत फेमस है। तो एक हैंडीक्राफ्ट्स में भी हम बोल सकते हैं दैट वेरियस अदर जम्मू एंड कश्मीर के काफ्तान्स एंड ऑल ये सारे हैंडीक्राफ्ट्स में आते हैं। तो ठीक, तो ऐसा वी कैन से कि लोकल हैंडीक्राफ्ट्स बहुत डेवलप होते हैं एंड इट जनरेट, कोई ना कोई तो बना रहा है ना उन्हें,
तो इनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। इट डेवलप्स एन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग विद कल्चर एंड एथनिसिटी। एज आई टोल्ड, कल्चर के बारे में पता चलता है, उन्हें हमारे यहाँ का कल्चर पता चलेगा, हमें उनके वहाँ का कल्चर पता चलेगा। Foreign tourists visit India for heritage. We are having so good heritage. इतना अच्छा architecture है. We are having so good of temples इतने अच्छे हैं and बहुत ancient monuments हैं. Economic culture के बारे में, adventure and tourism, everything. हम एक दूसरे से integrate होते हैं with trade. Clear? So this part was all about communication sector कि हम कैसे communicate हो रहे हैं एक दूसरे से. ट्रेड आपने इस चैप्टर में पढ़ा एंड टूरिज्म आपने इस चैप्टर में, टूरिज्म से कैसे ट्रेड होता है. ऑल योर चैप्टर ऑफ लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड्स हियर. गुड लक for the preparation. This was Ananya ma'am signing off. If you are having any queries, as I always say, write down in the comment section. I will be there to answer all of your queries. Thank you. Stay tuned. Keep learning. Keep enjoying.